अस्सलाम वालेकुम जी। आज दोबारा से आपको वेलकम है प्लेंटी इन 20 की थर्ड एपिसोड में। हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद अहमद। इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन बड़ी कोशिश करके मैं ब्रीफ करूंगा इसको, बिकॉज माशाल्लाह ही इज अ वर्सेटाइल पर्सन, अ सोशल लीडर एंड अ वंडरफुल कलीग ऑफ माइन एज वेल। सो प्लेंटी इन 20 में आपको पता है कि हमारे जो गेस्ट होते हैं वही हमारे होस्ट भी होते हैं, एंड दे हैव टू आस्क 3 to 4 क्वेश्चंस। और मेरी जिम्मेदारी होती है कि उन क्वेश्चंस का आंसर करूं, और इस क्वेश्चन आंसर में हम बहुत कुछ आपस में सीख लेते हैं। सो पहले थोड़ा सा हमारे गेस्ट जो हैं उनका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं जी। ही हैज बीन ऑडिट एंड फाइनेंस प्रोफेशनल फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 5 years, and apart from his profession is leading as secretary for ICAP Toastmasters Club Faisalabad, which itself is a huge achievement, mashallah. And basically he's working with the productivity of people. Productivity people Faisalabad corporate forum hai ek. Ahmad is also part of that, and he's a social activist, a social leader by passion, and serving for humanity through different volunteer programs. So like I said, I will try my level best to stay and remain as brief as possibly I could, but there are many other things that I could have shown as far as Ahmad is concerned. So welcome, Ahmad. How are you feeling? You are equally excited? Thank you very much. Thank you very much, Hanan Iftakhar. I'm feeling very pleased. First of all, I would like to congratulate you on this series Thank you very you have much. started Valenti in 20. And thank you very much for inviting me, for having me. It's a pleasure, Ahmad. First of all, I'm very wondered by your concept, by your theme. Always we see everywhere guest speakers, guest chief guests, honorable guests, and I never had seen before guest host. Yes, Such that's a it. wonderful idea. Such a It's a wonderful new idea. concept, isn't I it? really appreciate your concern. I really appreciate your effort. Such a wonderful Thank you idea. very much, Ahmad. Thanks a lot. It's all because of Uh, the motivation that I have with the colleagues like you. Yeah. Thank you very much. And the second thing, before we move on, I want to brief our audience a little bit, very brief, very brief. Yeah, please. Penalty in 20. Yeah. When it comes to know about the word penalty, it's about everything. Access, broad, everything. Yeah. Everything you want to learn, everything you want to do, everything you need. Everything Indeed. you need. Yes. Yes. So I Absolutely. came to the point this series is going to be more protective for the overall youth to enhance their Inshallah. leadership, to enhance their communication skills, to enhance their Inshallah. productivity in workplace, to enhance their productivity in life, to enhance their productivity in professional life, personal life, Inshallah. whatsoever. Well, So that's the whole point in it. penalty in 2020 gives you the opportunity to ask everything what you're passionate about, And that, what you're yes, looking for, and that's what the you whole are question. wanting for, and what you are feeling like greedy for. It's Yeah, up to that's you. a very good point. What you I want really to appreciate know. It's penalty. It's penalty, everything. What you want to know. Obviously, you will ask the question about your interest, like professional, like personal, or like voluntarily, whatever you want to know. So this is the very, very, protective step by you. I would like to congratulate on this series and looking forward to connect with you in this series. Thank you Thanks a very much lot, for Ahmad. having me again. Thank you very much. Let's It was a start our wonderful experience. session. Yep. So your Let's first start our question, Ahmad, if we go with that. Yes. Yeah. Yeah. Your first question. Yes, as I see you every time, even in Yeah. night, even in morning, even in the Yeah. afternoon, whenever I open the Facebook, I saw your status. All right. And very productive, to be very honest with you, very Just productive, trying. very Just trying. critical, specifically very critical about the Yeah, that's youth, very important. about the current situation, about the politics, whatsoever, right? Yeah. So my all questions are going to be about productivity as Okay. as That's good. we launch this series. My first question is from you. What productivity means to you? Okay.
This is really very important. You know what? Productivity to me is to think one thought a day, to do one thing a day, and to fail once in every try, every day. This is my productivity definition. That I'm sorry for disruption. yeah. Please. We can continue it bilingual because audience may be. Of course, yes. We sure हमने उर्दू में बेसिकली आना है. मेरे लिए प्रोडक्टिविटी की जो डेफिनेशन है ना वो ये है कि एक ख्याल एक दिन में, अच्छा ख्याल, वैसे 65,000 ख्याल आते हैं हमें एक दिन में, लेकिन वो 65,000 में से कोई एक ख्याल एक स्टेप आगे लेके जाने वाला, कोई एक काम एक स्टेप आगे लेके जाने वाला, ठीक है, कोई एक नाकामी किसी एफर्ट में, ये बड़ी अहम है. सबसे अहम मेरे लिए ये होता है कि रात को जब बैठ के मैंने अपना ऑडिट करना होता है ना कि आज सारा दिन मैंने क्या किया, क्योंकि शाम में कई दफ़ा एग्जाइटी हो जाती है कि आज कुछ भी नहीं किया, व्हाट हैव यू डन, यू हैव डन नथिंग. तो मैंने पैरामीटर एक ही सेट किया हुआ है कि क्या नया सोचा, क्या नया किया, और कौन सा नई नाकामी आज मिली है. और सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जब पता चलता है कि ये किया था और ये नहीं हो सका. राइट. प्रोडक्टिविटी के यूजुअली हम हर बंदा अपने आप में ना परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर रहा था. मैं बारहा ये बात आजकल लोगों तक पहुंचाता हूं कि इट्स नॉट द रिजल्ट दैट मैटर्स, इट्स द फर्स्ट स्टेप, इट्स द इनिशिएशन दैट डज, एंड कंसिस्टेंसी. Right. I remember when I started doing MS back in 2011. तो अगर मेरे कोलीग्स देख भी रहे हैं या वो इसकी रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं वो इसको एंडोर्स करेंगे. I never studied for grades. बाय द वे मैंने अपने MBA में भी कभी स्टडी नहीं किया ग्रेड्स में. ग्रेड्स के लिए मैं वो बंदा था जो टेबल टेनिस खेलता खेलता पेपर देने चला जाता था और पेपर दे के आके टेबल टेनिस खेलनी शुरू कर देता था. I was such a freak. I loved this game. Practically I loved it. कि 5 मिनट पहले तक मैं टेबल टेनिस खेल रहा हूँ और पेपर देने के फौरन बाद मैं टेबल पे बैठा हूँ. रात 7-8 बजे तक मैं यूनिवर्सिटी में टेबल पे ही होता था. बट व्हेन आई वाज स्टडिंग एवरी डे आई हैड टू हैव इट कि यार आज कुछ जरूर करके सोने के टाइम पे अपने बिस्तर पे जाना, ताकि जब आप कैथारसिस कर रहे हो ना तो आपको ये हो कि यार एटलीस्ट वन थिंग, और वन थिंग इज मोर देन इनफ. हम समझते हैं कि वी हैव टू डू इट ऑल टुगेदर, वन बिट एट अ टाइम, वन थॉट इन अ डे, वन फेलियर इन एन एक्टिविटी. दैट्स हाउ इट वर्क्स. जब कहते हैं ना वन स्टेप एट अ टाइम, उसकी यही डेफिनेशन है. एक ख्याल, एक काम और एक नाकामी, ये डेली की तीनों होनी चाहिए, डेली की. और यू आर ब्लेस्ड के अगर आपको नाकामी भी उस दिन मिली है. मतलब लेट मी डिस्कस. मैं कल की अपनी मैं रिकॉर्ड रखता हूँ ना बकायदा कि कहाँ सेटबैक हुआ. बड़ी छोटी सी बात है. आई हैड टू एक्चुअली टॉक टू समबडी और वी हैड टू फाइनलाइज सम डिटेल्स. एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन बट एट द एंड ऑफ द डे वी कुडंट एंड अप. हम इकट्ठे ना, हमारी बात नहीं हो सकी. उसके बाद रिफ्लेक्ट किया, मतलब नाकामी हुई ना, एक रिफ्लेक्ट किया. तो सबसे पहली तो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मेरे ख्याल में आया था इस बंदे को टच करूं. दूसरी बात ये थी कि इससे बात करूं, ये मेरा काम था कल का. तीसरा ये था कि वो मेरी बात को डिनाई कर देगा, एंड दैट इज माई नाकामी फॉर यस्टरडे. सी, उस नाकामी पे रिफ्लेक्ट करने के बाद 4 चीजें सामने निकली जो मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए था और ये मुझे नहीं करना चाहिए था, और ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था बातचीत के शुरू में, और एक ये मुझे अगले फेज में करना चाहिए था. तो वो जो नाकामी थी ना, नाकाम भी वही बंदा होगा ना जो कोई काम करेगा. एक्सक्यूज मी. काम करेंगे तो उसमें नाकाम होंगे ना. सो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, whatever the pressure is, productivity is all about being where you were not yesterday but ahead of it. और वो 1 इंच भी बहुत है. 1 इंच भी, एक छोटी सी एक्टिविटी, वो भी बहुत है. लाइफ गोल्स को हमेशा ब्रेक करके चलना चाहिए. हम मतलब मैं जिंदगी में क्या बनना चाहता हूँ जी, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बड़ा आदमी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जिंदगी? ओके, वन थॉट एट अ टाइम, एक ख्याल एक वक्त में, एक काम एक वक्त में, और एक नाकामी एक कोशिश के साथ. ये बड़ी जरूरी है. अगर आपकी कोशिश कोई पहली उसमें हो गई है ना, मतलब आपने कोई ट्राई की और आपको लगा कि ये रिजल्ट्स मेरे मतलूबा मुझे मिल गए, वैसे ऐसे होता कभी भी नहीं होता. दिस इज नॉट हाउ द नेचुरल इकोसिस्टम वर्क्स. लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि अब झटका थोड़ा सा बड़ा मिलेगा. आप अपने आप को मेंटली भी उतना ही रेडी कर लें. यानी पर डे आपके पास एक फेलियर होना जरूरी है. और बेहतर होगा अगर आप उसका रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें उसको.
ठीक है, मंथ एंड पे आपके पास 30 फेलियर्स, 30 वेज नॉट टू डू समथिंग। मंथ एंड पे आपके पास 30 नए ख्याल हैं, और एक ख्याल एक दिन में चाहिए ना। मंथ एंड पे आपके पास 30 नए काम हैं, नए इनिशिएटिव हैं जो आपने लिए, वो दिलेराना काम, वो फियरलेस होके जो आपने किया। तो जब आप मंथ एंड पे इसको देखेंगे ना, तो इट्स अ ह्यूज थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डन। एंड व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शीशे के सामने खड़े होकर आपको लगेगा कि यार आई हैव अचीव्ड। सो प्रोडक्टिविटी, इट इज ऑल अबाउट अ मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन, बट आप वहां ना हो जहां पे आप कल थे। छोटा सा कुछ काम, छोटी सी, अगर आपको लग रहा है कि आज एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी, बस एक कॉल करते हैं 24 घंटे में, अगर आपने वो कॉल भी कर ली और उस करने के बाद आपको लग रहा है कि कुछ अचीव हुआ है, मुझे आज सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मुझे आज मैं बिस्तर पे सोने लगा हूं तो मैंने ये सोचा कि यार कुछ किया आज, कुछ ना। और यकीन करें, हमने रोज कुछ ना कुछ किया होता। जो जिन्हें टिपिकली हमारा मुआशरा नकम्मा कह के सेट असाइड कर देता है ना, जिन बेचारों को, मासूमों को, वो भी सारा दिन एक ख्याल उनके ज़हन में भी आता है, एक काम वो भी करते हैं, एक नाकामी उन्हें भी होती है। तो ये थोड़ा सा ना माइंडसेट प्रोडक्टिविटी के लिहाज से चेंज करना बड़ा जरूरी है। जी अहमद, आई होप द आंसर द क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आंसर वेरी वेरी वंडरफुल। आपने सबसे मजे की बात जो आपने फेलियर जो हाईलाइट किया है ना, this is very important, this is very very important for every individual. Exactly. To accept failure in a well manner and a happily mood. Exactly. Very important. This is really as you said कि आप देखते हैं, ऑडिट करते हो, आप अपना ऑडिट करते हैं, उसके बाद मतलब जो भी आपने डे टू डे रूटीन में किया होता है, एक्शन जो भी आप करते हैं उसको आप रिव्यू करते हैं, ठीक है। जो भी आपकी कोई टू डू लिस्ट है या गोल अचीव करने के लिए उसको रिव्यू करते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिंक्ड टू दिस, रिलेटेड टू दिस। Yeah, but you're still connected? And I think from Ahmed's part there is a system glitch, but he will join us. Yeah, you're back. Yes, can you hear me now? Yeah, I can. I'm sorry for this. No, it's all right. It's very absolutely all right on my part. Yep. You always look at your upcoming projects, upcoming series, upcoming courses, whatever you want to do for your productivity, to enhance your productivity. My question is this: how you make things faster and easier to enhance your productivity? Okay, all right, Ahmed, it's a wonderful question and really believe कि ये वो सवाल है जिसका जवाब सबसे ज्यादा अहम होगा, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स, क्योंकि मैं और आप प्रोफेशनल्स हैं ना, हम तो ऑटोमेटिकली अपने आप को होल्ड बैक रखना आ गया हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमें पता लग गया किस टाइम तेज होना है, किस टाइम स्लो होना है, राइट? सो प्रॉब्लम, और वो माइंडसेट उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। माइंडसेट क्या होना चाहिए हमारा माइंडसेट बेसिकली ये होना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूं, जैसे भी मैं कर रहा हूं, मैं काम को एंजॉय करूं, पहले नतीजे को भूल जाएं, फॉरगेट अबाउट इट, डिटरमिन कर लें वेयर यू वांट टू बी एंड दैट्स इट, दैट इज द गोल इन द साइट, दैट इज योर फ्यूचर, बट द एफर्ट दैट वी आर पुटिंग इन, दैट मैटर्स अ लॉट। हम क्या करते हैं कि हम यकदम अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं, विच इज इम्पॉसिबल। कुदरती तौर पे ये पॉसिबल नहीं है, until unless you don't grow in confidence, you don't grow in intellect, you don't fail and you don't do and redo and keep doing all that, you cannot actually understand the whole philosophy of results and working. So नतीजा आप ज़हन में रखें कि आप फ्यूचर में किस स्टेट में होना चाहेंगे, लेकिन जो काम, जो एफर्ट आप पुट इन करें, उसे आप हर रोज, हर लम्हा, जब भी आप उसे कर रहे हैं, ऑन करें। ऑनरशिप इसलिए, अब मैं यहाँ पे अगर ये प्लेंटी इन 20 मेरे ज़हन में आया तो आपको ये बता देता हूँ कि ये आइडिया मुझे रात 2 बजे खाली छत के नीचे आया, क्योंकि तकरीबन रात 11 से 2 बजे तक का मेरा टाइम या पढ़ने का होता है या सोचने का होता है, दैट्स इट। और वो मोस्ट प्रोबेबली मैं अपनी छत पे जाके बैठता हूँ, वो एक ऐसा कोना है जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कुछ अंधेरा भी होता है, कुछ रोशनी भी होती है, खुला आसमान होता है और सोचने को बड़ा मिलता है। तो ये जितने भी आइडियाज हैं ना, ये यूं आते हैं बिकॉज आई एम अलोन,
एंड दैट इज माई टाइम, जिसका मुझे पता है कि यार ये प्लानिंग टाइम है ना, अब सोचो, पहले पढ़ो, फिर सोचो, फिर अपने से बातें करो। सो वन थिंग एट अ टाइम। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आपने यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करना है, तो आप ट्राईपॉड लेने गए हैं या मोबाइल लेने गए हैं रिकॉर्डिंग वाला, तो मोबाइल लेने को एंजॉय करें, ट्राईपॉड खरीदने को एंजॉय करें, उस रास्ते को एंजॉय करें जो आपने कवर किया है, उस शॉप तक जाने पे वापस आए, ट्राईपॉड को देखें, महसूस करें, फील इट, हाथ फेरें उसके ऊपर कि दिस इज माई इन्वेस्टमेंट, दिस इज व्हाट आई हैव डन टुडे। एक गोल पूरा हो गया। ठीक है जी। आप सोच रहे हैं, लिख रहे हैं आइडियाज को, तो लिखने को एंजॉय करें, सीरियसली स्पीकिंग। सी सो ये चीज बड़ी मैटर करती है कि सफर को एंजॉय करें, और जो जर्नी है ना आपका वो मैटर कर रहा है, डेस्टिनेशन तो आ ही जानी है, वो तो आपने सेट ही की हुई है ना जी। ठीक है। Exactly. कभी रास्ते में टायर भी पंचर होगा, कभी रास्ते में झटके भी लगेंगे, भटक भी जाएंगे, रास्ता भूल भी जाएंगे, लेकिन घूम फिर के हमने अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है। बट रास्ता भूलने को भी एंजॉय करें, गाड़ी का टायर पंचर होने को भी एंजॉय करें। ठीक है जी। दिस बेसिकली ब्रिंग्स वेरी पॉजिटिव वाइब इन आवर बॉडी, और हमें फिर होता है कि यार चल तो रहे हैं ना, बट दैट्स व्हाट मैटर्स द मोर। ठीक है जी। सो ये चीज जो है ना अहमद, ये बहुत मैटर करती है, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स। लुक, इट विल टेक टाइम, इट ऑलवेज डज। प्लीज डू नॉट रश, you don't need to. Trust your instincts, trust the time, slowly चलें, आहिस्ता आहिस्ता, और जो कर रहे हैं ना आप, उसको आपने इंजॉय करना है। कोई भी छोटा सा काम आप जो करें, मैं तो ये कहता हूं अहमद, मैं बड़ा ब्लैटेंटली ये बात कहने को तैयार हूं, अगर वक्त जाया करने का भी कोई मकसद है तो वो वक्त बहुत मजे का गुजरा, सिंपल एज दैट। अगर वक्त भी जाया किया ना मैंने, और मैंने सोच समझ के वक्त जाया किया कि यार वक्त जाया करना मेरे लिए बड़ा जरूरी है, और इस वक्त जो है ना वो दिल कर रहा है कि वक्त जाया किया जाए, और प्लान के साथ वक्त जाया किया है, एक गोल की ओरिएंटेशन के साथ वक्त जाया किया, तो कोई मसला नहीं, आप आधा घंटा पौना घंटा कुछ भी ना करें। वो हो सकता है कुछ ना करने के चक्कर में कोई ऐसा ख्याल ज़हन में आ जाए जो बंदे ने शायद बड़ी मेहनत के बाद भी ना आना हो। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि हम अपने जो भी एक्टिविटी करें उसको करते हुए एंजॉय करें। मैं इस वक्त अगर इस बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे भूल जाना चाहिए कि ये बाद में वीडियो कैसी लगेगी। इस वक्त मेरे लिए जो मैटर कर रहा है वो ये कर रहा है कि आई एम स्पीकिंग एंड आई हैव गॉट अ कलीग ऑफ माइन, अ वंडरफुल कलीग इज आस्किंग मी वंडरफुल क्वेश्चन, एंड देयर आर मोर देन लाइक 4 people who are watching it, there are people who are sharing the video, there are people जो बाद में इस पे कमेंट्स करेंगे, but right now I'm enjoying myself and that's it. I don't care कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, बिकॉज वो पहले डिटर्मिन करना चाहिए था मुझे। बट अब तीर कमान से निकल गया तो अब तीर को एंजॉय करना चाहिए जब तक टारगेट हिट ना हो जाए, फिर देखेंगे क्या लगा क्या नहीं लगा जी। Perfect, Hanan Iftakhar, very wonderful. Enjoying your things and work should be the way to be productive, in short. So, as you said me in the very first meetup that we have, the Knowledge Cafe is a shop. Yeah. Remember. So, you said मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया, मैं सोशल डिटॉक्स करता हूँ, मैं सोशल डिटॉक्स यूजुअली करता हूँ, मोबाइल बंद करके रख देता हूँ। Exactly. And you avoid such things, such irrelevant things that disrupt your productivity. Indeed. Right? Right? So आपने वो डिसीजन लिया, आप प्रोडक्टिविटी इनहेंस करने के लिए, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपने कहा कि you turned off your mobile notifications, push notifications. You turned out some applications alerts, you deactivated your Facebook account, something like this. All relevant stuff that you want to avoid. So my question is this: is there anything still interrupt you to enhance your productivity, to be productive more? Well, Ahmed, there are two things. एक हमारा होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। भी ऑल नो, दोनों में फ़र्क ये है कि कुछ ऐसे अवामिल हैं जो मेरे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे मौसम मेरे कंट्रोल से बाहर है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ये है कि मौसम बाहर है कंट्रोल से, लेकिन छतरी लेके जाना मेरे कंट्रोल में। बारिश को मैं नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन बारिश को अवॉइड कर सकता हूँ विद द अम्ब्रेला, या मैं उस टाइम घर से बाहर ही ना निकलूँ, वेट कर लूँ, थोड़ी देर बाद चला जाऊँ। सो जो चीज़ें हमारे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में आते हैं ना, वो है हमारा अपना माइंडसेट और थॉट।
ये जो ख्याल आते हैं ना, ये बड़ी जाबर चीजें हैं। ये अगर बंदे को सही अंदाजा हो जाए ना कि उसके थॉट्स का क्या इफेक्ट उसकी बॉडी पे फिजिकली आता है, मेंटली नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ फिजिकली आता है, तो ये बड़े डेविस्टेटिंग इफेक्ट है इसका। गुड थॉट्स विल टेक अस टू अ पॉजिटिव आउटलुक एंड नेगेटिव थॉट्स विल टेक अस टू वेरी ड्रेन्ड एंड वेरी व्हाट आई वुड कॉल एक बड़ी अजीबो गरीब सी बॉडी हमारी फिजिकली, हम बॉडी लैंग्वेज हमारी नजर आ रही होती। सो ये थॉट्स जो है ना, मुझे जाती हैसियत में इनके ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा डिस्टर्ब है। मतलब काम के दौरान मोबाइल को चेक करके व्हाट्सएप चेक करना, ये भी तो थॉट ही है। अब उस थॉट को ऑनर करना है और चेक करना है, या उसको लेट गो कर देना है कि कोई नहीं, ठहर के कर लेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ है, दिमाग तो कह रहा है ना तुम्हारे पास व्हाट्सएप पड़ा हुआ है, बीच में चेक कर लो, किसी ने कोई बात की होगी या तुम्हारे स्टेटस पे कोई कमेंट आया होगा। सो ये चीज चनाचे मैं वो नहीं करता ना, इतनी ज्यादा अपने बारे में चीजें अपने फेसबुक वगैरह पे अपलोड नहीं करता। फेसबुक प्री एक्टिवेट करने का मतलब सिंपली ये था, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे एंड दे सेड कि वी वांट यू टू कम बैक अपनी टर्म्स पे, और मेरी टर्म्स पे ये है कि मैं लाइक और कमेंट नहीं करता, और मैं इसका तकरीबन हर वीडियो में जिक्र करता हूँ। ये है कि मैं क्या खा रहा हूँ मैं ये नहीं अपलोड करता, सिंपल एज दैट। सी सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं अपने थॉट्स को। और मैंने ये देखा है कि जब एकदम ख्याल एक आता है ना कि जी कुछ खराब होने वाला है, जिंदगी जो है ना वो सही नहीं गुजर रही, इस ख्याल की लाइफ 5 मिनट है। तो मैंने वो ट्रिक सीख लिया, मैं 5 मिनट तक ना वेट करता हूँ कि ये जो दिमाग के अंदर अब वो एक एग्जाइटी पैदा हुई है ना, जो एक स्ट्रेस पैदा हुआ है, ये 5 मिनट में हवा का झोंका गुजर जाए, फिर अपना काम दोबारा शुरू करते हैं। With experience, of course, I did suffer in the hands of this thing. लेकिन whenever a negative thought comes, जब मुझे ये लगता है कि walls are closing in, दीवारें जो है ना वो तंग कर रही हैं, मेरी जिंदगी तंग हो रही है, और ये सिर्फ दिमाग में होता है, बाय द वे कुछ भी नहीं होता। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पास ही पड़ा है हमारे इर्द गिर्द। इसीलिए अल्लाह ताला की जात ने इंसानों को इकट्ठे रखा हुआ है ना। हम एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, हमेशा करते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, और बाय वर्च्यू करते हैं इसको। सो अपने थॉट्स में जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे 5 मिनट, उसकी लाइफ है, 5 मिनट आप उसको जो वो करता है करने दें, कुछ ना करें, तमाम काम छोड़ दें। इफ यू आर रीडिंग स्टॉप इट, ईटिंग स्टॉप इट, वर्किंग स्टॉप इट फॉर 5 मिनट्स, वो मैनेज करें। तो ऑटोमेटिकली ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को रोकती है, उसको उसका गला घूमती है, बल्कि माजरत से अगर मैं ये बात कहूँगा ना, जस्ट अ मियर थॉट। और 15 मिनट तक मैंने ये रूल बनाया हुआ है कि जब मैं कोई काम शुरू करता हूँ ना करना, 15 मिनट तक मैं किसी किस्म के कोई इम्पल्स जो है ना उसको नहीं सुनता। मतलब मैं अगर स्टडी कर रहा हूँ और 15 मिनट्स तक कोई मैसेज आ रहा है, कोई कॉल आ रहा है, मैंने फ़ोन साइलेंट पे लगाया हुआ होगा और मैं फ़ोन चेक नहीं करूँगा, 15 मिनट्स अगर आप कोई काम कर चुके हैं ना, तो फिर आप 15 आवर्स भी कर सकते हैं उसको आगे, उसी जगह बैठे बैठे। ये ह्यूमन माइंड का ना वो है, उसमें कभी खारिश भी होगी बाजू पे, कभी कान पे भी होगी, कभी दिमाग भी कहेगा ये क्या काम कर रहे हो यार। सो ये एक डिस्ट्रैक्शन है जिसे हमें फिर हैंडल करना होता है। दैट्स व्हाट ऑन माय पार्ट। या सो यस अहमद, वी हैव बाय 23 मिनट्स डन राइट नाउ। तो क्वेश्चन बहुत जी जी, and this is very most valuable, this is most valuable question of the right session. Do you take some time to celebrate when you finish your job, or you jump your feet into the next project? I mean to say, आप इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, आप इतना ज़्यादा स्टडी भी करते हैं, आप इतना ज़्यादा लाइक सेशन सीरीज, और उसके बाद आपकी एक्टिविटीज में देखता रहता हूँ, हसल लाइफ है, हसल लाइफ है, दिमाग में भी हसल है, फेसबुक पे भी हसल है, एक्चुअली भी हसल है, दिमाग में तो है और वही दिमाग में हसल हर जगह बता रही है। ठीक है, तो माय क्वेश्चन इज दिस, डू यू रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर अ प्रोडक्टिव वर्क यू हैव डन? Yep, I do it, and I how you do usually give a pat. I physically give a pat sometimes on the back. Good, well done, good job. Forget about the results. ये आपके साथ वीडियो होगी ना, ये खत्म होनी है, उसके बाद I'll give myself a pat. Good job. देखेंगे बाद में वीडियो में कौन सी कमियां थी, वो रात को करेंगे काम, कोई इशू नहीं। बट 30 सेकंड के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट यू न्यू कि दुनिया सारी तुम्हें देख रही है, एंड you stayed with the composure and you delivered, you answered the questions. Good job, well done. अब देखेंगे कि इसको और इम्प्रूव कैसे करेंगे, but that is in another phase. But right now, all right, target achieved. Good job.
जरा हौसला करो, अब 10-15 मिनट 20 मिनट छोड़ दो सब कुछ, मैं छोड़ देता हूँ। ये आपके साथ सेशन कंप्लीट होगा ना, दिस इज वन ऑफ दी असाइनमेंट्स। अगले 20 मिनट तक आई विल जस्ट लीव एवरीथिंग, फोन भी परे पड़ा होगा, साइलेंट पे लगा हुआ होगा, मैं या लेटा हुआ हूँ या कहीं बैठा हुआ हूँ, calming myself down, relaxing the brain। जो इंजन इस वक्त बहुत तेजी से 5th गियर में चल रहा है ना, उसको काम डाउन करना है, स्विच ऑफ करना है, बकायदा डिस्कनेक्शन लेके आना है इस काम में और जो अगला करने वाला होगा। ठीक है जी, तो ये बड़ी जरूरी चीज है जी। आप अगर अपने आप को प्रेस करते हैं और अगर आप अपने आप को पैट देते हैं ऑन द बैक, फिजिकली देनी चाहिए, मैं तो करता हूं ऐसे, जबरदस्त, गुड जॉब, वेल डन। ठीक है, मतलब हर काम का नतीजा वैसा नहीं निकलता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन काम का हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अगर आप अपनी जात को मेरा दूसरा ये मानना है अहमद कि अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो फिर आप दुनिया की हर बंदे और हर चीज को अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप खुद को अप्रिशिएट नहीं ना करते तो आप में अप्रिसिएशन की आदत ही नहीं है, आपके दिमाग को, आपकी सोच में अप्रिसिएशन की अहमियत ही नहीं है। एंड अप्रिसिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम आवरसेल्फ, वी नीड टू अप्रिशिएट आवरसेल्फ। ठीक है, पहले अपनी एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे हम, फिर उसके बाद हम अपने आप को बताएंगे कि लुक इट कुड हैव बीन बेटर दिस वे, तो नेक्स्ट टाइम इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, जरा बॉस ध्यान रखना अगली दफा। ओके, सो कोई भी असाइनमेंट कंप्लीट करें, स्टॉप इट, कंप्लीशन को चीयर करें, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स, कंप्लीशन को चीयर करें, डिस्कनेक्ट हो जाएं 15 मिनट के लिए, देन गो फॉर द नेक्स्ट। और अगर आपने ये देखना है कि आपकी असाइनमेंट, आपका काम कितना अच्छा था या बुरा था, उसका एक वक्त दिन में मुतय्यन कर लो। उससे पहले और उसके बाद आपने उसके बारे में वरी नहीं करना। मतलब अगर 12 बजे बैठ के मैंने ये रिफ्लेक्ट करना होता ना कि यार अब देखता हूँ मैं वीडियो मेरी कैसी बनी थी, ठीक है जी, तो एक तो मैं फौरी तौर पर वीडियो नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगेगी। तो जो चीज़ इंसान को अच्छी लग रही होती है ना, वो बायसनेस की वजह से उसको कभी उसमें कमी बेशी झोल नजर नहीं आता। एक तो मैं वीडियो देखूंगा 6 घंटे बाद, जब मैं हनान इफ्तिखार नहीं, क्रिटिकल हनान इफ्तिखार हो चुका हूँ, वहां फिर निकलेगा कि यार ये यूं नहीं, ये यूं होना चाहिए था, बट नेक्स्ट टाइम वी विल डू इट। अभी आई विल जस्ट अप्रिशिएट, आई विल जस्ट रिलैक्स, दैट्स इट, इनफ। वो अपने पे तरस खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, ये बड़ी अहम चीज। मैंने ना खा के भी देखा है, मैं ये भी बताऊं, आई वाज समबडी ऑलमोस्ट 4 years back, 5 years back, I was somebody who would work to live, नॉट इन अ सेंस के पैसा बनाने के लिए, आई वुड वर्क टू स्टे अलाइव। मेरा ये मानना था कि अगर मेरे पास काम नहीं है ना, तो मैं शायद जिंदगी से हाथ धो बैठो, खुदा ना खास्ता, सांस बंद हो जाएगी मेरी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान सीखता है, रियलाइज्ड कि काम, हर काम ही है, पानी पीना भी तो एक काम है, इसी तरह रेस्ट करना भी एक काम है, अपने आप को काम डाउन करना भी एक काम है। तो सारे काम इकट्ठे करो ना भाई। ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही कुछ ना करें, और ये भी नहीं होता कि हर टाइम आप कुछ करते रहें। एवरीथिंग इज अ काम, सोना एक काम है, सांस लेना एक काम है, खाना एक काम है, पीना एक काम है। टेक इट वन बिट एट अ टाइम, दैट्स इट। आप आंसर द क्वेश्चन अहमद। So we have been joined by Dr. Qamar Saab. Sir, topic basically एक सेशन है। Thank you very much, Hanan Iftikhar, for such a wonderful and thoughtful insights on every question. I'm very pleased to be. Thank you very much, Ahmad, and thanks a lot for taking time out, Ahmad. I really feel honored and privileged having you because the questions, मैं वही कह रहा हूँ कि ये आइडिया मेरे ज़हन में इसलिए आया था कि there are a lot of questions जो हम प्रोफेशनल्स आपस में एक दूसरे को पूछते हैं ना, जब हम अकेले बैठते हैं तो बड़ी मजे की डिस्कशन हमारी होती है, तो क्यों ना हम उसको सरेआम करें। ठीक है जी, ये बातें वगैरह आप पर्सनली बैठ के भी कर सकते थे आपस में, लेकिन ये सवाल, इतने अहम सवाल, और उसके ऊपर फिर हमारी आपस में इनपुट। So thank you very much, Ahmad, and thank you very much all the viewers for joining us today. Inshallah ta'ala, tomorrow we have the same session, the same time at 6 p.m. with a young host who's hardly 11 years of age, and we will enjoy it ourselves. So thank you very much, everyone. You take a good care of yourself. This session of Plenty in 20 comes to conclusion. I'm signing off. So is Ahmad.